Good morning, students. It's your English subject. Your Farzana ma'am is back with your next lesson, and your next lesson is your chapter 6, and the name of the lesson is The Little Bully. Can you see your page? Have you opened your book? Ready with your page number? It's over here. It's I cannot see the page number. Hope you are back with your page number. And here we go with our reading and understanding the lesson. And The Little Bully, this is the topic of our today's English subject. And first you have to understand the name of understand the word bully. Bully means जो person आपको परेशान करे या आपको इतने हद तक परेशान करे कि आपको बॉडी पे ज़ख्म आ जाए या कोई एक्शन से आपको रुला दे या बातों से आपको रुला दे, तंग करे, उसको हम वो पर्सन को हम बुली बोलते हैं. एंड व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ बुलिंग द पीपल अराउंड. वो बहुत परेशान करते हैं लोगों को इधर उधर. और एक और वर्ड हम बुली के लिए ले सकते हैं, एक्चुअली वो नहीं है सही, बट आजकल आपने वर्ड सुना होगा रैगिंग. So ragging is also nothing, is just like a bully. And this lesson is been taken from a very famous writer. You might have heard this. The name of this writer is Enid Mary Blyton. Enid Blyton. She is a writer who have written many hundreds and hundreds of stories for children and their behavior and how to tackle these different good and bad behaviors of these children. She is the story writer, or you can say the writer for children. I love reading Enid Blyton books. Even she is famous till today. Yes, let's see the reading. Imagine you encounter a bully in your school or in your neighborhood. How would you tackle the situation? Discuss in class. यानी कि आपको इमेजिन करना है कि आपके आसपास कोई एक ऐसा बच्चा है या पर्सन है जो परेशान करता है, लोगों को बुली करता है, या आपके घर के आसपास नेबरिंग हुड में आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो परेशान करता हो लोगों को. हाउ वुड यू टैकल द सिचुएशन. फिर आप ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, यानी कि इससे ये सिचुएशन से कैसे बचेंगे, ये आपको डिस्कस करना है बाय रीडिंग दिस स्टोरी. दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल बॉय कॉल्ड रवि who pricked and pinched other children. So here the two words used for you might have heard this word pricked and pinched. Pricked means कोई नोकीली चीज़ से जब आप किसी को चुबा देते हो और उधर से खून भी निकल आता है, blood comes out, that is known as pricking. Okay? आप जब रोज़ मालूम है ना, रोज़ के स्टैम पे कांटे होते हैं और आप रोज़ को फ्लावर को अगर तोड़ना चाहोगे उसके पौधे से, उसके प्लांट से, it will not help you to break so easily. Either you have to take the help of the pair of scissors or some sharp knife. If you don't have these things to cut the flower, rose, you will prick, or your finger will be pricked by the thorns on the stems of the rose. So pricked मतलब कांटेदार चीज़ होती है, पॉइंटेड चीज़ होती है जिसके आप छूते ही आपका खून निकल आता है. ओके. पिंच मतलब ये भी आपने सुना होगा कहीं, चुमटी भरना. तो आप अगर चुमटी भरा जाए आपके कोई बॉडी पार्ट पे, तो चुमटी तो वैसे सॉफ्टली भी भरी जाती है, बट कोई कोई तंग करने के लिए इतनी ज़ोर से पिंच करता है, हार्डली पिंच करता है, चुटकी भरता है कि वहाँ से जो है वो एरिया से ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है और वो एरिया ब्लूइश कलर का हो जाता है. अदर चिल्ड्रन. ओके. There was a small boy called Ravi. I have started my reading, children, and hope your finger is running on the lines where I am reading, and even you are reading it along with me. There was a small boy called Ravi. He was in 5th standard. He was strong and he loved to tease all the boys. See the word tease, all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do the most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin. Let's do the reading. So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could
always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. What is telling tales? Is it a good habit or a bad habit? It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. So let's have an explanation. It's very easy. It's an easy English over here use, and you have understood almost the whole page, but little bit here and there the words which you haven't understood. यानी कि आपका जो ये रवि है, ये बच्चा जो है 5th स्टैंडर्ड में ही इज स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड लाइक यू, और इनका जो बिल्ड है, हाउ ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड उनको क्या पसंद है, ही लव टू टीज ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विथ हिम. और जो भी बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स उनके साथ स्कूल में जाते थे, उन बच्चों को ये परेशान करते थे, चिढ़ा के परेशान कैसे करते थे, ये आगे दिया हुआ है. What he loved to do the most was to pinch. ये बच्चों को कैसे चिढ़ाते थे, उनको चुमटी भरते थे, पिंच करके चिढ़ाते थे. He could make a big bruise appear in half a second. और इनकी चुमटी इतनी खतरनाक होती थी कि जो जगह पे ये पिंच करते थे वहाँ पर नीला निशान पड़ जाता था. ब्रूश मतलब एक खरोच आ जाती है जब आप गिरते हो खुरदली ज़मीन पर, तो वो चुमटी भर के वो निशान बना देते थे, ब्लू कलर कर देते स्किन का, यानी कि उधर का खून का सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, वो एरिया आपका ब्लू पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है. इतना हार्डली पिंच करते थे. ओके, और वो भी कितने सेकंड में, हाफ अ सेकंड. और दूसरा ट्रिक क्या पसंद था उनका, वो पिन से, कैन यू सी द वर्ड, पिन से लोगों को प्रिक करते थे, प्रिक करके खून भी निकाल देते थे. सो यू कैन गेस, तो आप सोच सकते हैं कि वो जो उनका तरीका था लोगों को हैरेस करने का, टीज करने का, दोनों तरीके बहुत ही डेंजरस थे, खतरनाक थे. क्योंकि ये सारे बच्चे जो थे उनको वापस पिंच करना चाहते थे, दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वापस पिंच करना चाहते थे, बट दैट वाज नो गुड. क्योंकि क्यों वो वापस पिंच करें तो क्या होता था, वो फिर से रिस्पांस जो मिलता था वो रवि से, वो और ख़तरनाक होता था. वो उनको और ज़्यादा तकलीफ़ वाला पिंच करते थे और हार्डर पिंच करते थे, ताकि उस एरिया का चमड़ी ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए. काफ़ी दिन लग जाते हैं जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, तो उनका पिंच जो था, अगर आप उनको पिंच करो तो वो वापस से और ख़तरनाक वे में पिंच करते थे. They didn't like telling their teachers. और ये सारी बातें बच्चे कंप्लेन भी नहीं करना चाहते थे, because that was telling tales. अगर टीचर देख ले उनको करते हुए रवि को तो वो अलग बात है. अभी तक कोई टीचर ने उनको देखा भी नहीं था कि वो कैसे परेशान करते हैं अपने आसपास के क्लासमेट या स्कूल मेट्स को. तो ये जो अगर कंप्लेन करें बच्चे, तो ये एक बैक बाइटिंग वाली बात होती है जो बहुत ही बुरी होती है. बैक बाइटिंग चिल्ड्रन इज़ नॉट अ गुड हैबिट. It's very bad, telling tales or backbiting. It so happened, एक बार क्या हुआ कि क्लास पूरी दिन के लिए पिकनिक पे गई. कहाँ पर गई ये लोग पिकनिक पे? सी साइड पे स्कूल ने एक ऑर्गेनाइज़ किया पिकनिक पूरे दिन के लिए, और सारे बच्चे बहुत ही खुश थे वहाँ पर जाने के लिए. कैसे गए वो लोग उधर? How did they go to the seaside? Let's see by reading the next page. Have you opened your book to next page, children? It's your 40. Yes. On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Ravi because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sand they raced hand in hand, but nobody took Ravi's hand. Nobody went near him. Ravi was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. Just see what is the meaning of by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were
2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. Again, by himself is being used. He wouldn't offer anything to anyone. I'll complete this also. Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. Good morning. I am so pleased to meet a boy like you. Ravi turned around and stared in fright. So, what is the explanation of all these 1, 2, 3, 4 para? It's very easy. जैसे ही वो दिन शुरू हुआ on that day, वो दिन बहुत ही ब्राइट था. अगर ब्राइट नहीं भी हो तो बच्चों को खुशी के मारे वो ब्राइट ही लगेगा, क्योंकि वो पढ़ाई के बजाय कहाँ जा रहे थे? पिकनिक, और वो भी उनके मनपसंद जगह में पानी में खेलने मिलेगा उनको. दैट इज़ नियर द सी साइड. एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट. और बहुत बुरी तरह उन लोग खुश थे. दे वर वेरी वाइल्ड, यानी कि इतने हद से ज़्यादा जब खुश होते हैं तो वाइल्ड हो जाते हैं हम बच्चे स्पेशली. दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन. तो कैसे गए वो सी साइड पे? ट्रेन से. एंड सेट डाउन, और फिर अपनी अपनी सीट पे बैठ गए. बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू रवि. क्यों? क्योंकि वो उनको पिंच करेंगे. ओके. वैन दे अराइव्ड एट द सी साइड, जैसे ही वो सी साइड पे आए, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विद अ शाउट ऑफ जॉय. और कैसे वो उतरे ट्रेन से? एक बहुत ही ज़ोरदार चीख से उतरे. ओके. और कहाँ पर गए? डाउन टू द सैंड दे रेज्ड. और समंदर के किनारे क्या होता है? सैंड होता है, ऑफ कोर्स रेती का इलाका होता है ना. तो रेत में वो कैसे गए? भागते हुए गए. रेज्ड, हैंड इन हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागते हुए गए बेतहाशा. बट नोबडी टुक रवीज हैंड, नोबडी वैन नियर हिम. बट किसी ने रवि का हाथ पकड़ा नहीं, कोई उनके पास भी नहीं गया. तो ये सारी बातों से रवि को बहुत गुस्सा आया. ही वॉज एंग्री. और उन्होंने क्या किया? वो एक कॉर्नर जो रेत से था भरा हुआ कॉर्नर, जो नेचुरली सी साइड पे गए हैं तो रेती होगी, तो सैंडी कॉर्नर पे गए जहाँ पर क्या था? रॉक की पूल था, यानी कि पानी भी था. और उसी रॉक पे उन्होंने बैठ गए. ही सेट ऑन दैट रॉक. बहुत सारे रॉक्स थे उधर, नीचे पानी था, तो रॉकी पूल पे वो बैठ गए. He sat down by himself. What do you mean by himself, children? As I told you, there are 2 places by himself is used. यानी अकेले, कोई भी नहीं था उनके साथ. He was all alone. He took out his lunch and looked at it. और उन्होंने अपने लंच बॉक्स को निकाला और उसको देखा कि मेरे लंच बॉक्स में क्या क्या है. तो बहुत ही अच्छा लंच था, बहुत ही तगड़ा वाला जो बोलते हैं ना, a strong person lunch. There were pieces of there were 2 hard boiled eggs, जैसे हमने पहले पढ़ा था. बॉइल्ड एग्स थे. और 6 जैम सैंडविचेस थे. जैम आपको पता होगा, खट्टा मीठा जैम होता है. 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, और ब्रेड एंड बटर का अलग 3 पीसेस दिया था मम्मा ने उनको. और जिंजर केक भी था. यू नो व्हाट इज जिंजर चिल्ड्रन? जिंजर मतलब अदरक. ओके. जिंजर केक था. एंड अ बार ऑफ चॉकलेट. और उनके पास एक बड़ी सारी चॉकलेट की बार भी थी. ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ. और वो फिर से बाय हिमसेल्फ, यानी अकेले खाएंगे ये सब चीज़ उनके पास जो है. ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन. क्यों नहीं ऑफर करेंगे? क्योंकि कोई उनसे बात भी नहीं कर रहा था और ना ही कोई उनसे साथ खेल रहा था. जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एग, जैसे ही वो खाना शुरू किया अपना लंच, किससे शुरू करने वाले थे? वो एग से शुरू करने वाले थे. Okay, children, I've lost my track of the cursor. Yes, he was about to start his lunch with eggs. He heard a hoarse voice. एकदम भारी भरकम आवाज़ जो होती है ना किसी की, तो वैसी आवाज़ थी उनकी. hoarse voice, यानी कि एकदम भारी भारी, जैसे कि कोई हमें डांट रहा हो, तो वैसी भारी आवाज़ थी. नियर हिम, और उनके करीब में ही कोई एकदम थोड़ा सा हलक से जो एकदम निकालता है आवाज़, जिससे हम डर जाएं, वी गेट स्कैर्ड. ओके. और क्या बोला वो भारी भरकम आवाज़ ने? फर्स्ट, गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, दिस मेट मे बी. रवि टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट. रवि जैसे ही घूमा वो डर गए. तो व्हाट डू यू थिंक रवि सॉ? रवि ने क्या देखा होगा आपके हिसाब से?
Let's see, read further. Ravi saw a monster crab walking sideways. So, we will stop till here, children, and we will begin our reading in our next lecture. Hope you will you have understood till here, and hope you will read this lesson again and again, so that it will help you to improve your reading skill, your vocabulary skill too. Okay, children, underline the words which you don't understand and let me know. I will make you understand and on my WhatsApp. Till then, children, have a happy reading. Goodbye.